Just like devotees are more compassionate, more merciful than God, Shiva is like that. Shiva is Vaishnavanam Yatha Shambho. If you ask any devotee, majority of devotee will say that they have joined ISKCON by the mercy of Shiva. Bholenath. Majority, most of the devotees, they have come and joined the pure devotional service path by the mercy of Shiva. When Krishna created this universe, you know what happened? He gave instruction to all the different gods, demigods. Then finally he called Shiva. So Shiva said, please don't give me any service. I want to be with you all the time. So then Krishna started smiling. He said, no. See, to perform my devotional service, to surrender to me, it really requires a lot of surrender. The person who is not in the mode of goodness, he cannot worship or serve Krishna. No way. No way. So therefore, and especially the Kali Yuga is filled with the people who are in a mode of passion and ignorance. Hardly you will find anyone in mode of goodness, isn't it? So, therefore Krishna, he called upon Shiva and he said, it's my request to you. Krishna never orders anyone. Even in Gita also you will find, Krishna never said, okay Arjuna, you must do this. Krishna requested Lord Shiva that this is my request to you, if you can take up this seva of liberating the person, people who are in a mode of ignorance and passion. So what can Shiva do? Same thing like when Nityananda Prabhu, when Mahaprabhu Chaitanya went to Jagannath Puri and he stayed after taking sannyas in Jagannath Puri, Nityananda Prabhu also wanted to be with Mahaprabhu in Jagannath Puri. But Chaitanya Mahaprabhu called him, Nitai, it's my desire. You please go to Gauda Desha, Bengal, and preach this holy name on my behalf. So Nityananda Prabhu, although he didn't want to go, but in out of separation from Krishna, from Mahaprabhu Chaitanya, he was not in external consciousness. He was just simply chanting and dancing and dancing and dancing. You will find the kirtan went on for months and months and months, and nobody even knew who they are. They were not in external consciousness. So same thing happened with Shiva. When Krishna said that you cannot stay with me, you start your own process, your bhakti process, and then Shiva is like an Ashutosh. Krishna is not Ashutosh. Krishna says, Sarva Dharman Parityajya Mam Ekam Sharanam Vraja. For Krishna's bhakti, you need some qualification. You have to give up this. But Shiva, he is a Bhutanath. Bhutanath means one who delivers the ghostly beings. Like hobgoblins and ghostly beings and bhoot pishach. What kind of rules and regulations you can tell them? Those who are in a ghostly beings, what kind of rules and regulations you can tell them? No way. So similarly, today's population of Kali Yuga is almost like ghostly beings. There is no question of telling them, four regular principles. What kind of ghostly beings will you follow? Four regular principles or any other principles. Therefore Shiva says, you just come to me. Chant any mantra, do any bhakti. But Shiva, he can only take you one step ahead in bhakti. No one except Krishna, no one can give you liberation. Mukti koi bhi nahi de sakta. Mukunda, Krishna's one of the name is Mukunda, Mukti Pradata iti Mukunda. Only Krishna has that right to deliver the people from the cycle of birth and death. But Shiva is so kind, he tries to take the soul from the mode of ignorance and passion to the mode of goodness, and somehow or other, if the person is very sincere, Shiva Bhakta, I am talking about Shiva Bhakta, if a person is very sincere and genuine, Lord Shiva gives a special mercy, and he, just like one of our Acharya writes, what is the responsibility and service of Shiva?
Shiva has opened a big mall shop. Please come to my shop. And then most of the 99.99% people, they are they want something material gains in their life. Fame, prestige, money, wealth, male, female, all this. But some people, they are very genuine. They said, my dear Shivji, whatever the best you can offer to us, you please give us. I don't want any material benedictions from you. Then Shiva says, oh, here is a sincere person. Shiva personally catch holds the hands of that Jiva, whoever is very sincere, and he says, you come with me. Then he crosses the street and goes to the another mall where all our Goswamis, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, and the Bhakti Acharyas, they have their own stall, their own shops. And Shiva says, here is your candidate. Please give him Krishna Bhakti. In my shop, they are full with Bevde, Petad. Last time I made a video. Does Shiva smoke ganja? Weeds. Does Shiva drink bhang? कितने लोगों को लगता है हाथ ऊपर कर? Shiva drinks bhang or smokes weeds, ganja. कितने लोगों को लगता है हाथ ऊपर कीजिए? और okay, Shiva doesn't drink ganja or smoke ganja or weeds or bhang. ऐसे कितने लोग लगता है? Now, before making any video, therefore I referred all this. Went through all the scriptures, especially the scriptures which are related to Shiva. Moda and passion wala. I could not find anywhere any description where Shiva smokes ganja or he drinks bhang. Never ever. कहीं किसी भी शास्त्र में नहीं है. किसी भी शास्त्र में नहीं है. And sometimes people give this argument, only in the heavenly planet, the demigods or gods in the heavenly planet, they drink somarasa. But that somarasa has nothing to do with today's liquor. आज की दुनिया के जो शराब है और वो जो सोमरस है, उसका दूर दूर से कहीं कनेक्शन नहीं है. Then मैंने इंटरनेट से वो फाइंड आउट किया, what are the best brands of liquor. वो जीवी ब्रांड जो सब they cost one bottle of like this 2 lakh rupees, 200,000 rupees for one bottle. और 10 रुपए की भी मिलती है आपको. Just imagine the difference between the liquor of this world from 10 rupees to 2 lakh rupees. तो झोपड़पट्टी वाले बोलेगा तू 10 रुपए वाली नजर फोड़, 2 लाख वाला बोलेगा, right? So even in this world we'll find so much of difference between these liquors. If you say, Indra, you also drink liquor, I also drink liquor, so much. Indra will say, shut up, तुम्हारा liquor ये नहीं है. Somaras is the highest form of any juice, you can say, like a nectar, अमृत. वो अमृत को तुम यहाँ से कनेक्ट नहीं कर सकते तुम कि वो भी शराब पीते हैं, ऐसा नहीं है. Their whatever juice, liquid they drink is full of herbs, this, that. It's purely, completely different. We should never mix that, the demigods also drinking somra, they are also fully intoxicated. No. Similarly, Shiva is also always intoxicated, but not with the ganja or weeds or bhang. He is intoxicated with Krishna prema. He is always chanting Lord Rama's name, he is always chanting and singing the glories of Sri Radha and Krishna. And he is intoxicated in that. Shiva never smokes ganja. Even today, if you go to very, very authentic holy places of Shiva, you will find they offer liquor. I won't mention the name of the place. Like one of the biggest place of Shiva, they offer liquor. Okay, it is never mentioned in the Shastra. And then that liquor is given as Mahaprasad to all the devotees. People really like that Mahaprasad. In your ISKCON center, you give only some halwa or this, that. Here we get
people like that. But Shiva never. So Shiva, especially today, please listen carefully. I went, I saw that, I read that scripture. I read thrice that line. Today is a Mahashivratri, according to this Marcus. According to Vaishnava calendar, tomorrow is a Mahashivratri. And on the day of Mahashivratri, if you go to any Shiva temple where there is a Shiva Linga, whether it's an authentic temple, authorized temple or not, Shiva is present in the Shiva Linga at least for today. Even if a liquor, Beoda wala bhi hai na, and he makes one sand ka Shivalinga or mitti ka Shivalinga or anything, कुछ भी plastic लेके तुम ऐसा शिवलिंग बनाओ और उसको worship करो. Today, only for one day, Shiva resides in Shivalinga. Whoever makes that Shivalinga, कोई भी बनाए, अपने घर में बनाए, रास्ते पे बनाए, कहीं भी बनाए, तुम शिवलिंग बनाओ. Today Shiva is present in the Shivalinga. And ask anything from him. Seriously. He is such a Vaishnava. You know why he is called Ashutosha? Because Krishna has given him that special seva of delivering the people who are like, low class, like, those are in mode of ignorance and passion and ghostly beings. So Shiva goes one step ahead of instructions. He said, okay, you have given me instruction to deliver them. Ashutosh is, he doesn't even open his eyes. Anyone comes to him, okay Shiva, I want this. Then Shiva says, do you have any other desires apart from your list? If you have ask anything. If you have fulfilled the criteria, this much of worship, and you will get, if you have done worship, take it. Go. Happy, be happy. Don't disturb me. Shiva says, don't disturb me, I am happy with my chanting Hare Krishna mantra. So that is Shiva. So on this day, so if you can go to Babalnath, another Varanasi or Ujjain, that's very good. Even if you cannot go, even at your home, if you just make a Shivalinga, but what should we ask from Shiva? If you really genuinely want the blessings of Shiva, वो तो business वाला तो कुछ भी है ना. Suppose some person comes to you and then you have your own shop and he gives you 5,000 rupees. Okay, I want this, and then you give that person. He gives you 5,000 rupees and he gives some ingredients to him. But then you don't establish a relationship with him. He said, okay, भाई business हो गया, 5,000 तुमने दिया, 5,000 मैंने सामने ले लिया. After taking that माल, he cannot say, so sir, आप how are you? आपके घर में कैसा है? ये क्या है? वो बोला फुट. तुमने 5,000 रुपये दिए, मैंने सामान दे दिया. निकल रास्ता ना पूरे. तुम अब रिलेशनशिप बनाओगे क्या उसके साथ? कि सर तुम्हारा ये क्या है, खानदान कहाँ है, ये है, वो है. हाँ. If a person comes to your shop and he fulfills all the criteria, all the bhakti, everything is done, and then Shiva says, what do you want? Then the person says, I don't want anything. Really? अंदर आ जाओ, दुकान के अंदर आ जाओ. You don't want anything? Then he says, whatever you are relishing, whatever you are enjoying, I want that. Then Shiva says, oh, you are very intelligent, huh? चलो आ जाओ. Then he पूरा खोल देता है. राम राम रमेति Ramane Rame 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 Mano Rame. He is chanting Lord Rama's name every day. He said, okay, you also start chanting Lord Rama's name. So this is Lord Shiva. And Shivaratri means today is Shiva got married to Parvati. And this marriage is a very special marriage. It never happened in the past, will never happen in the future like this. Because all the Bharatis, Shiva's marriage mentioned in the Shastra, all the Kailash Vasis, sorry, not Kailash, Himalayan Vasis. Because Himavan is a father-in-law of Shiva. And Parvati is reborn, Sati is reborn as a Parvati. So when she was getting married to Shiva, first time in his life, Lord Shiva was dressed so opulently. He had golden ornaments,
nicely, combed hair. Narad Muni was shocked. He said, Shiva, what happened to you? You are looking like so neatly dressed, so opulent, but you are looking very handsome. And then just Shiva gave a smile to Narad Muni. And he said, just wait for 2 minutes. As soon as the marriage got over, 2 minutes के अंदर, and then शादी का मंडप होता है ना, मंडप से बाहर निकले, immediately all the clothing disappeared, all the golden ornaments disappeared, and again Shiva had those snake ornaments, armlets and bracelets, and his choker also. Shiva's ornaments are only made up of snakes, and bhasma all over his body. शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, 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 मुंड मांग राजे शशिभाल पर विराजे, गल मुंड मांग राजे शशिभाल पर विराजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, गले मुंड माल राजे शशिभाल पर विराजे, गले मुंड माल राजे. Now gale munda mala raje means he is wearing a skulls around his neck. प्रभु जी ने कहा हिंदी में बोलो, अब हिंदी में बोल ही रहे हैं लोग उसमें. One of the name of Lord Shiva is Kapali. Kapali means one who wears the garland of skulls. Skulls देखा है कभी? मत देखना. वो ऐसी जरूरी नहीं कि वो देखना ही है करके. स्कल मतलब वो ह्यूमन का ये खोपड़ी खोपड़ी एकदम सही वर्ड है वो खोपड़ी. वो खोपड़ियों की माला पहनते वो. So what does that mean? What does that represent? The खोपड़ी represents death. So Shiva has conquered over death. शिवा ने मृत्यु को जीत लिया है, इसीलिए उनका नाम कपाली है. गले मुंड में मुंड की माला लेके चलते हैं. वन ऑफ द नेम ऑफ शिवा इज भस्म भूत. He always smears the ashes from a crematorium. ये होता है ना, क्रेमेटोरियम होता है ना अपना शमशान, स्मशान भूमि. स्मशान भूमि की राख लगा के अपने शरीर को लगाते हैं वो. अब वो क्यों लगाते पता है? To show the highest renunciation. वैराग्य का लास्ट प्रतीक है वो. And then he says he wants to show to the world that most of my worshippers they come to me and approach me for some material benedictions. मुझे सुख चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए. अरे लास्ट में तू राखी बनेगा, ऐसे बन जाएगा तुम. देखो मेरे शरीर के ऊपर क्या है. Although I have all the opulence, just imagine if someone is a logical person, all the demons they approach Shiva. राक्षस जाते हैं, बड़ी तपस्या करेंगे, क्या चाहिए, धन चाहिए, चाहिए. लेकिन जो व्यक्ति देने वाला है वो कैसे रहता है वो भी तो देखो. He is not even wearing any clothes. He has just ashes all over his body. He is wearing the garland of skulls. His armlets and bracelets are made up of snakes. नागभूषण नाम उनका, नागभूषण.
Nagbhushan. Nagbhushan means one who is wearing all the armlets and bracelets of Nag. So Shiva has 1008 names. 1008 है ना, वो अष्टोत्तर सबसे है ना, वो हम तो सिर्फ टाइटल दे, उनमें सही में नाम है उनके क्वालिटीज के हिसाब से उनके नाम है. One of the name is Bhasmabhut, another is Kapali, another name is Jatadhar. He has matted hair. अब matted hair क्या है पता है? That matted hair represents the sky. आकाश का प्रतीक है वो matted hair. और again वैराग्य का प्रतीक है. One of the name is Shulapani. Shulapani means one who holds the trident. त्रिशूल अपने हाथ में लेते हैं. अब शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, उसका क्या अर्थ है? त्रिशूल रिप्रेजेंट्स द थ्री मोड्स, पैशन, इग्नोरेंस एंड गुडनेस. वो तीनों मोड को से परे है. कृष्ण हैज, शिवा हैज कॉन्कर्ड दिस थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. ही इज बियॉन्ड द पावर ऑफ थ्री मोड्स. देयरफॉर ही हैज अ ट्राइडेंट. शूलपाणि. वन ऑफ द नेम इज भैरव, भैरवनाथ, काल भैरव. भैरव मीन्स ये सारे तांत्रिक लोग ना, तांत्रिक तमो होने वाले ये वो, इनके स्वामी है शिव. कलियुग में ना आप देखोगे वाई दिस वर्शिप कॉल इन इग्नोरेंस. तमोगुणी क्यों बोलते हैं वो उनकी पूजा अर्चा को? कि उनका एजेंडा, उनका गोल क्या है? डिस्ट्रक्शन, मारना किसी को वश में करना, किसी को उड़ा देना, यही उनका ये है. आपको प्योर भक्ति, कृष्ण भक्ति में ऐसा नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा. लेकिन तांत्रिक में वही है सिर्फ, इसको मुड़ मारो, उसको उड़ा दो, इसको पीछे कुछ भूत लगा दो उसके पीछे. वो भी विद्या है, वो तमोगुणी विद्या है वो भी, लेकिन बहुत कम है, लेकिन है ये दुनिया में. ऐसा उसको आप निगलेक्ट नहीं कह सकते. कोई बोलते अरे भूत है कि नहीं, साइंस ने पता नहीं, साइंस ने पूरा ढूंढा कहीं मिला नहीं. अबे साइंस तुम्हारा क्या क्या ढूंढ सकता है तुम्हें? साइंस ने देखा नहीं, साइंटिस्ट ने देखा नहीं, और तुम्हारे साइंटिस्ट ने देखा नहीं मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता है क्या? कभी कभी होता है ना. वो मुझे उससे गुस्सा क्यों आता पता है क्या? वो अपने हिंदू लोग ना हमेशा एक साइंटिफिक रीजन देने का ट्राई करते हैं. हमारे लोग यहाँ वर्मिलन क्यों लगाते हैं कि यहाँ बीच में से लगाएंगे तो ठंडा रहता है. अरे मैंने बोला ये हर वो साइंटिस्ट को दिखाने के लिए तू कुछ भी उटपटांग रीजन दे देगा क्या? हम बोलेंगे ये शास्त्र में दिया है, बस अगर तुम्हें समझ में आए तो ठीक है, तुम्हें समझ में नहीं आई है वो तुम्हारा प्रॉब्लम है. There are many things which are mentioned in the Shastra you will not understand or you cannot see with your this fleshy eyes. Does that mean कि अभी साइंटिस्ट को समझ में नहीं आया इसका मतलब ये गलत है? नहीं, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है. तुम्हें समझ में आया नहीं है वो तुम्हारा प्रॉब्लम है. हम हर चीज को साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देते नहीं रहेंगे, क्योंकि साइंस की भी लिमिटेशंस है. मॉडर्न साइंस की भी लिमिटेशंस है. उनको ये समझ में आना चाहिए. हर चीज हमको वो है ना, वो नाम नहीं लेंगे हम, नागपुर वाले अंधश्रद्धालु, वो खुद ही अंधश्रद्धालु. अरे अंधश्रद्धा का मतलब है श्रद्धा तो हर एक के अंदर है. हर चीज को तुम अच्छी श्रद्धा को भी तुम अंधश्रद्धा बना के डालोगे तो तुम अंधश्रद्धालु हो गए हो ना फिर. हाँ, हम ये नहीं कहेंगे कि भाई कुछ बहुत सारी जगह पे तो ऐसा है कि लाल पत्थर को लाल कलर लगा दो, हो गया वो भगवान. कैसे हो गया भगवान? हम एक आपको एक वर्शिप डेटी वर्शिप वाला सेमिनार देंगे. मूर्ति में भगवान होते हैं कि नहीं होते, पूरे साइंस के साथ, साइंटिफिक के साथ हम एक वर्णन करेंगे. हो सकता है नेक्स्ट टाइम, प्लीज वो मिस मत करना वो सेशन. चाहे आपको एथिस्ट भी आके पूछे, मैंने उसकी इतना रिसर्च करके बनाया है, वो एथिस्ट भी आकर पूछे आपको, या कोई भी आकर पूछे कि आपको ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं. या कोई अलग धर्म के लोग भी है जो डेटी वर्शिप को मानते नहीं है, मूर्ति को मानते नहीं है, वो सारा हमने कवर किया है. मे बी नेक्स्ट टाइम जब भी हम आएंगे, नेक्स्ट वीक नहीं, नेक्स्ट टाइम. तो भूत नहीं, ये क्या मतलब है? तो भूत है कि नहीं है? भूत है, लेकिन जितने क्वांटिटी में आप बताते हो उतना नहीं है. हर बार भूत है, यहाँ पे भूत है, वहां पे भूत है, ऐसा नहीं होता है.
तो लोग सबके मन में डर रहे, रात हो गई, थोड़ा अंधेरा हो गया मतलब भूत आ गया। इतना आसान नहीं है। भले ही आजकल के लोग भूत ही ज़्यादा बनते हैं, लेकिन इतना आसान भी नहीं, इतना भी रैम्पेंट नहीं है पूरा हर जगह पे भूत ही भूत, ऐसा नहीं है। लेकिन है भी नहीं बिल्कुल वैसा भी नहीं है भूत, लेकिन वो अलग अलग है। लेकिन हमको मूवी में क्या दिखाते हैं कि किसी ने देखा, बताया था कि यहाँ भूत है, फिर हमने प्रूव करके दिखाया वहाँ भूत नहीं है। तो एक मूवी में तुमने प्रूव करके दिखाया, इसका मतलब पूरे वर्ल्ड में नहीं है। ये वाला तो गलत हो गया ना। इसलिए जो शास्त्र में लिखा है वो भले तुम्हें समझ में आना है, लेकिन हम हर बार कोई बोलेगा कि हाँ भूत है, हम लोग स्वीकार भी नहीं करेंगे, लेकिन कहीं भी नहीं है ऐसा भी नहीं बोल सकते आप। तो आत्मा भटकती उसके पाप करने के कारण। दूसरा कारण एक है, हमें जो शरीर मिला है उसमें जितने ईयर फिक्स नहीं है, 70 साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे, ये फिक्स नहीं है। हमारे ब्रेथ्स, सांस लेना, कितना सांस लेंगे, कितने सांस छोड़ेंगे, वो सांसें फिक्स है। अब उतने सांसें फिक्स होने के बाद अगर वो व्यक्ति उतना जीवन जिया नहीं है, बीच में ही उसका कुछ, किसी ने मर्डर किया, ये किया, वो किया, तो उसका नेक्स्ट बॉडी अभी तक रेडी नहीं है। तो उसको नेक्स्ट फिजिकल बॉडी मिलने तक उसको सूक्ष्म बॉडी में रहता है, इसलिए वो भटकता रहता है। ठीक है। तो शिवाज नेम इज भूतनाथ, ही इज मास्टर ऑफ भूत। वन ऑफ द नेम इज रुद्र, वन हु रोर्स, और हिज क्राई मेक्स पीपल फियरफुल। उनका जो रौद्र ये है, क्राइम भी इतना भयानक है कि लोग उसकी फेयरफुल होते हैं। His another name is दिगंबर। दिगंबर मतलब his clothing are 4 direction। उनका जो कपड़ा पहनने का स्टाइल है, चारों दिशा उनका कपड़ा है, इसलिए उनका नाम दिगंबर है। एंड हरा means one who steals away the पाप कर्म of his devotees, इसलिए उनका नाम हरा है, सब पापों से मुक्त कर देते हैं। His name is गंगाधर, one who holds गंगा in his जटा। कैसी पर्सनैलिटी है ये। जब भगीरथ महाराज इतनी तपस्या की अपने पूर्वजों की लिबरेशन के लिए, मुक्ति के लिए, he went to the spiritual world and he requested Mother Ganga, my dear mother, please appear on this planet Earth to deliver my ancestors। तो गंगा माई ठीक है। When she started flowing downwards towards the Earth planet, she said, my speed is so high, if I directly hit on this Earth planet, पूरे टुकड़े हो जाएंगे अर्थ के। तो बेचारे पुअर भगीरथ जी ढूंढने लगे क्या करें। शिवा को कहने गए, शिवा से कहे, आप थोड़ा कुछ अरेंजमेंट कर सकते हो क्या। शिवजी का गंगा आ रही है, चलो लेके आओ। Because Shivji knows that this Ganga is a चरणामृत, कृष्ण के लोटस फीट से निकली है गंगा। So then he said, या सही बात है, पृथ्वी के ऊपर मत जाने दो पहले, क्योंकि वो होल हो जाएगा वहाँ पे बहुत बड़ा, मेरे सर के ऊपर आने दो। शिवा इतने स्पेशल पर्सनालिटी है, मेरे सर के ऊपर आने दो। तो गंगा स्ट्रेट भगीरथ महाराज was walking in the front and Ganga was following him, and then गंगा आई भगवान के जटा में बैठ गई। भगवान ने कहा रुको, यहीं पे रुको। And she was also very happy and comfortable. She was getting the association of pure Vaishnava like Shiva। तो फिर उसके बाद उन्होंने रिलीज किया, स्पीड थोड़ा कम कर दिया। So Ganga came from the spiritual world, resided in the jata of Shiva, and after that she appeared from Gangotri, हिमालय से वहाँ से निकली। And another place बहुत पास में हमारे नासिक त्र्यंबकेश्वर। तो शिव जी को बस लगा कि गंगा निकल ही नहीं रही। एक जगह पे गोमुख से हिमालय से निकली और यहाँ त्र्यंबकेश्वर माउंटेन पे अपने जटा को जबरदस्ती से पहाड़ के ऊपर मारा, उन्होंने फेंका, क्योंकि वो एसोसिएशन दूर नहीं जाना चाहती थी। उन्होंने कहा जाओ लोगों को लिबरेट करो, मुक्ति करो। देन द गोदावरी रिवर सी इज ऑल्सो गंगा ओनली। गंगा का एक दूसरा रूप है गोदावरी, सेम है वो गंगा ही है। तो जो वहाँ एक गोमुख से निकलती है,
एक त्र्यंबकेश्वर महादेव से निकलती है, त्र्यंबक पहाड़ से। तो शिवा उनका नाम गंगाधर है। इज अनदर नेम इज पंचानन, 5 मुख है, उसमें से एक हनुमान जी है। जब भगवान राम आए तो शिव जी भी उनकी सेवा करना चाहते थे भगवान राम की। तो कैसी सेवा करें? तो हनुमान बनकर आए। हनुमान शिव जी ही है, शिव जी का ही रूप है हनुमान। कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे भगवान शिव ने, भगवान राम ने वो रामेश्वरम में शिव जी की शिवलिंग की पूजा की थी। तो भगवान वैष्णव कहते हैं कि हनुमान कौन है? वो शिव ही तो है। तो किसी ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद हु इज ग्रेटर, कृष्ण बड़े हैं कि शिवा बड़े हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा सिर्फ मूर्ख लोग ही ये आर्गुमेंट करते हैं शिवा बड़े हैं कि राम बड़े हैं, ये मूर्ख लोग ही सिर्फ डिस्कशन करते हैं। उन दोनों में क्या चलता है वो पूछो ना मुझे। शिवा और राम के बीच में क्या चलता है? दोनों के बीच में कंपटीशन चलता है कि मैं आपकी सेवा करूं कि तुम मुझे, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। वो नहीं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ये दोनों में कंपटीशन है और नीचे वाले लोग फालतू आर्गुमेंट करते हैं। When Sri Chaitanya Mahaprabhu went to Kanchipuram, विष्णु कांची और शिव कांची, इतना पास में रिवर के बाद इस तरफ शिव कांची, इस तरफ विष्णु कांची, एंड दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते आ जाओ फॉर डिबेट। डिबेट क्या है? शिवा बड़े कि विष्णु बड़े तो देन चैतन्य महाप्रभु वेंट देयर एंड ही सिंपली लाफ्ड एट देम। कितने मूर्ख लोग होते हैं कि ये सिंपल आर्गुमेंट के लिए कौन बड़ा है या छोटा है, ऐसा नहीं है। शिवा कौन है पता है? शिवा इज विष्णु's इनकार्नेशन और एक्सपेंशन। अभी आपको मैं जो बता रहा हूँ पूरे शास्त्र पढ़ने के बाद बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। राधा एंड कृष्ण दे आर द फर्स्ट कपल, जोड़ी। विष्णु नारायण, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, ये एक पहले कपल है, जोड़ी है। पार्वती और शिवा ये राधा और कृष्ण ही है, लेकिन ये दुनिया में, भौतिक दुनिया में प्रजनन करनी है, संतति की उत्पत्ति करनी है। तो कृष्ण या नारायण कभी भौतिक प्रकृति के साथ टच में नहीं आते, मटेरियल नेचर के टच में नहीं आते वो। इसीलिए बीच वाले जो शंभु तत्व है, शिव तत्व, ये क्या है? राधा और कृष्ण, लक्ष्मी और नारायण, वो पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो वैकुंठ के लोग हैं। ये भौतिक दुनिया में आते नहीं है वो। लेकिन भौतिक दुनिया में जीव निर्माण पैदा कैसे होंगे, जन्म कैसे लेंगे? वही राधा और कृष्ण, लक्ष्मी और नारायण शिव पार्वती बनकर, अभी वो हाफ मर्ज में देखा, जैसे समुद्र में जाओगे ना तो कभी ऐसा उसका शीशोर है ना, शीशोर का ऐसा पार्ट होता है, वो पानी टच भी करता है, पानी निकल भी जाता है। थोड़ा गीला होता है, थोड़ा सूखा होता है, थोड़ा गीला होता है, थोड़ा सूखा हो जाता है। एक तो एरिया है वो पूरा ये है, मतलब ड्राई है। एक तो पूरा पानी वाला है, एक बीच वाला है, पानी थोड़ा गीला होता है। शिवा ऐसे है, ऑल्दो ही इज कृष्ण और नारायण, लेकिन ही इज टच्ड विथ मटेरियल नेचर। पार्वती माता जगत जननी है, ये दुनिया में सबको जन्म देने के लिए, और शिवा ये पिता है। तो ये भौतिक प्रकृति का उनको टच है, स्पर्श है। अभी मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, ध्यान करो, सुनिए। राधा और कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, इनमें सेक्स नहीं होता। जो मेल फीमेल में होता है ना प्रकृति करने के लिए, वो एक्शन उसमें नहीं है। शिवा और पार्वती के बाद इस भौतिक दुनिया में जो भी जीव जन्म लेते हैं, उनमें वो सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होता है। इसीलिए कभी कभी लोग बोलते हैं, अच्छा वो शिवलिंग वही है क्या? अरे मूर्ख, वो शिवलिंग वो नहीं है। दैट शिवलिंग रिप्रेजेंट्स द मस्कुलिन दैट नेचर एंड द फेमिनाइन नेचर। ये दुनिया में प्रकृति और पुरुष इनका प्रतीक है। वो ऐसा नहीं कि इनका जेनेटर कट हो गया, उनका जेनेटर मिक्स आ गया, वो शिवलिंग बना, ऐसे नहीं है वो। ये हम जैसे मूर्ख बुद्धिमान लोग, बुद्धू लोग समझ नहीं सकते।
उनको लगता है कि योनि है पार्वती के और शिव जी का लिंग है। ऐसा नहीं है, शास्त्रों में क्लियर लिखा है। अगर आपको ऐसा लिंग समझ में, अगर आपको लिंग मानना है इसका, शिव पुराण में लिखा है उसका साइज पूरे 14 प्लैनेटरी सिस्टम से बड़ा है, तो इसको तुम ऑर्डिनरी लिंग बोलोगे क्या? ये दुनिया में सृजन निर्मित कैसी होगी उसका वो प्रतीक है शिवलिंग, है ना। तो पार्वती और शिवा के बाद ये दुनिया में फिर सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होता है। मैंने भागवतम क्लास दिया उसके पहले रासलीला के ऊपर, लोग कहते कि शिवा कृष्ण द्वारकाधीश, द्वारका में उनके हर 16,108 रानियाँ थी, हर एक रानी के 10-10 बच्चे थे, तो वो कैसे जन्म लिए? भागवतम में या बाकी शास्त्रों में वर्णन है कृष्णा गोपियों को एम्ब्रेस करते हैं, तो उसको कैसे समझना है? कृष्णा ओनली एम्ब्रेसेस, वो कभी सेक्सुअल एक्ट नहीं करते। सइच्छतः, उन्होंने अगर ग्लांस भी डाल दिया ना, अब शिवलिंग क्या है पता है? भगवान की दृष्टि ये भौतिक प्रकृति के ऊपर गिरती है, तो वो जो ग्लैंस है, वो ग्लैंस से सारे जीव, भगवान विष्णु ने ऐसे अपना ग्लैंस समझते ना, दृष्टि ये भौतिक दुनिया पर डाली, और वो दृष्टि के द्वारा सारे जीव आए और इस भौतिक दुनिया में उनका जन्म होता है। वही है शिवलिंग। इक्षतः स इक्षतः, तो भगवान कृष्ण अब देखिए वराह के रूप में आए और भूमाता को उन्होंने समुद्र से, अपना क्षीर सागर से, कार्बोदक सागर से उठाकर अपने सूंड में उठाकर, अपने नोज पे, टिप ऑफ द नोज, वहां से उठाकर उन्होंने एस्टैब्लिश किया और भौमासुर का जन्म हुआ। पृथ्वी माता का सिर्फ ऐसा टच था। प्लीज सुनिए, भागवत में वर्णन आता है, वराह देव जो विष्णु के अवतार है, वराह देव ने पृथ्वी को अपने नाक के जैसे टच के ऊपर ऐसा टच किया था, बस उससे भौमासुर का जन्म हुआ। अब यहाँ कहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटी है? कुछ ही नहीं है। जन्म कैसे हुआ? सिर्फ वो नाक के स्पर्श से जन्म हो गया। उसी प्रकार से कृष्ण, राधा, नारायण, लक्ष्मी, राम, सीता, ये डिवाइन पर्सनैलिटीज है, ये तीनों गुणों से परे है। और शिवा ये शंभु तत्व है, भले वो 3 गुणों से परे है लेकिन प्रकृति के टच में है ना, इसीलिए उनको कहते हैं क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा। लक्ष्मी, नारायण, सीता, राम, राधा, कृष्ण वो दूध के समान है और शिवा और पार्वती दही के समान है। दही क्या है? वो दूध ही है, लेकिन उसमें अभी विकार आ गया है, उसमें थोड़ा खट्टापन आ गया ना, इसलिए वो दूध का दही बन गया। तो शिवा दही है और कृष्ण और नारायण दूध है। अब दूध और दही में कोई अंतर है क्या? एक ही है वो। तो हमें अगर देखना है कि शिवा कौन है या विष्णु कौन है, दोनों में अंतर क्या है, तो ये दूध है, ये दही है। दोनों का अपना अपना यूज है। दूध अलग चीज के लिए लगता है, दही अलग चीज के लिए लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ये दुनिया पे सृष्टि करने के लिए और क्या पावर दिया है? दुर्गा माता, सी इज दुर्गा, मतलब दुर्ग की इंचार्ज, पूरे भूतला का भगवान कृष्ण ने कहा तुम पूरे दुनिया का इंचार्ज तुम। इसलिए बंगाल में जाओगे ना, दुर्गा माता, काली माता, ये वो सब जगह पे दुर्गा माता क्यों है सब जगह पर? अगर आप शास्त्र कोई भी पढ़ो, सारे शास्त्र में आपको सिर्फ माता का ही वर्णन दिया है, वर्शिप का। आपको कहीं पर भी राधा रानी का वर्शिप मिलेगा नहीं, कृष्ण का वर्शिप किसी शास्त्र में मिलेगा नहीं, लेकिन पार्वती का, दुर्गा माता का सब जगह मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये दो लोग इतने स्पेशल है, शिवा और पार्वती, उन्होंने पूरे वर्ल्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। कृष्ण और राधा वो सिर्फ लीला करते हैं। समझ में आई बात आपको? तो जो ग्राउंड वर्क होता है ना, अब किसान देखे ना, वो प्लाविंग करते हैं खेत में, प्लाविंग करने के बाद उसमें सीड्स डालने के बाद उसको फसल उगाओ, ये करो वो करो, ये सारा काम शिवा और पार्वती करते हैं।
जब पूरा प्रोडक्ट तैयार हो जाए, फसल पूरी घर में आ जाए, उसके बाद राधा और कृष्ण कौन होने वाले हैं? शिवा और पार्वती को बोलते हैं आपके पास का जो हाईएस्ट प्रोडक्ट है ना, अभी जो कचरा पट्टा जो भी था सबसे हाईएस्ट, वो बोलते हैं ना उसमें अल्फांसो मैंगोज है ना, रत्नागिरी के, कोंकण के, वो इंडियंस को दिखते ही नहीं, वो सबसे पहले अमेरिका जाता है। अल्फांसो मैंगो का अगर इतना सा भी टच है ना, तो काला दाग है या कुछ भी है, वो एक्सपोर्ट नहीं होता, वो यही रहेगा। वो एक एक मैंगो 200, 300, 500 के आसपास, 500 का एक एक मैंगो एक्सपोर्ट वाला होता है, और सीधा पहले यूएसए जाता है, अमेरिका जाता है। वो द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम नासिक पहले अमेरिका जाएगा। उसी प्रकार से शिव और पार्वती के पास जाके कृष्ण बोलते हैं तुम्हारे फसल में से जो टॉप क्लास की एक्सपोर्ट क्वालिटी वाले जो लोग हैं ना, मेरे पास बेस्ट है। क्योंकि जो तमोगुण रजोगुण के ऊपर आ गए, सतोगुण में आ गए। अरे जस्ट इमेजिन कीजिए आप, 4 नियम का पालन कलयुग में ब्राह्मण लोग भी नहीं करते। ऑनियन गार्लिक छोड़ना इतना आसान है, चाय छोड़ना इतना आसान है। हर एक साधु पीता है, हर एक ब्राह्मण पीता है। वो हमें एक साउथ इंडियन से ब्राह्मण आए थे यज्ञ करने के लिए, तो यज्ञ करने से पहले बोलते भाई चाय चाय अरेंज करो भाई। हमें किसी का चाय पीना में कोई ये नहीं है। तो बागेश्वर महाराज जी का इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने चाय मंगा, चाय पिया, लेकिन उन्होंने क्लियर बोल दिया हम आपको सबको बता रहे भाई कि चाय पीना अच्छा नहीं है। उन्होंने खुद ही बोलो चाय पीना अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे क्या है मेरे दादा की तरफ से आया तो मैं पीता हूँ। क्लियरली बोला उन्होंने ऐसा ही। तो आपकी अदालत में था उनका, बड़े अच्छे बोलते हैं, सीधा बोल्ड नहीं बोलते। वो किसी ने पूछा कि ये आपका ये बुलडोजर अहिंसा में कैसे आता है, बोलते हाँ अहिंसा ही है, बुलडोजर अहिंसा ही है। बड़े अच्छे पर्सनैलिटी है। एनीवे, तो हम क्या बता रहे थे? हाँ, 4 नियम का पालन करना इतना आसान है क्या? और वो भी कलिजुग के जीवों से। चाय नहीं पीना, ये नहीं करना है। अरे किसी को तंबाकू छोड़ने के लिए, सिगरेट छोड़ने के लिए मैं भी इसको छोड़ देता हूँ भाई, ये नहीं छोड़ सकता मैं, सिगरेट नहीं छोड़ सकता, या फिर ये मांस मच्छी ये नहीं हो सकता मेरे जिम्मे, आप चले जाओ। समझ लेना, एक्सपोर्ट क्वालिटी का अभी तक बना नहीं है। थोड़ा सा इधर उधर है थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, हर व्यक्ति एक्सपोर्ट क्वालिटी का बन सकता है एसोसिएशन से। आप अच्छे लोगों के साथ रहो। एक मैंगो भी आपके टोकरी में सड़ा वाला आएगा ना, तो सारे के सारे 200 मैंगो जो एक बॉक्स में है ना, सपोज 100 मैंगो एक बॉक्स में है, उसमें एक सड़ा हुआ है। वो 100 अच्छे वाले मैंगो मिला करके उस सड़े वाले को ठीक नहीं कर सकते हो। चलो यार हम लोग तो 100 है, ये सड़ा वाला मैंगो ये क्या कर सकता है, हम इसको सुधारेंगे। नहीं नहीं नहीं, और 2-3 दिन रहो, अपने आप ही वो सड़ा वाला मैंगो 100 वाले को सड़ा देता है। देखा है ना आपने, यही प्रकृति का नियम है। इसलिए सड़े हुए लोगों के पास मत रहो, जिनका दिमाग हमेशा नेगेटिव रहता है। कुछ लोगों का कोई भी चीज हो जाए ना, सबसे पहले उसमें फॉल्ट देखेंगे, वो इसमें दोष क्या है, अरे सबसे पहले उसमें गुण क्या है, सद्गुण क्या है, वो पहले देखना। तो उसका सिस्टम ही ऐसा, उसके कर्म ही ऐसा है, तो सबसे पहले फॉल्ट देखेगा, या फिर डाउट से स्टार्ट करेगा। इसने मेरे को ऐसा क्यों देखा, उसमें ना लगता कुछ तो गड़बड़ है। अरे वो ऐसा देखो कि ये व्यक्ति में कितना अच्छा गुण है, पहले वहां से स्टार्ट करो ना। तो कलियुग में ऐसे होता नहीं है। इसीलिए कृष्ण भक्ति के लिए वो जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के मैंगोज है ना, वो ऑफर होते हैं। लेकिन हमें फिर भी ट्राई करना चाहिए। हमें हर व्यक्ति को एक्सपोर्ट क्वालिटी का समझना चाहिए भगवान के ऑफर के देने के लिए, है ना। तो शिवा और पार्वती का ये काम है। अगर कोई सड़े हुए मैंगो भी है ना, आओ यार चलो कोई बात नहीं, खा लेता तुझे भी तुझे गटर में नहीं फेंकूंगा मैं, तेरा भी काम मैं कहीं तो अभी हाईएस्ट जूस में तो नहीं कर सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ तो तुम्हारा भी भला हो जाएगा। इसीलिए वो आशुतोष है, बहुत ही उनका नाम है एक गिरीश। गिरीश का अर्थ है ऐसा नहीं कि वो पहाड़ों के राजा है, पहाड़ में वास करते हैं। पहाड़ के राजा का ईश मतलब वो भी हो सकता है, लेकिन जो गिरी के ऊपर रहते हैं इसलिए उनको गिरीश कहते हैं।
उनका एक नाम है, प्लीज सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, भोलेनाथ। क्या नाम है ये? भोला मतलब क्या? इनोसेंट, निरागस। जो इनोसेंट लोग हैं ना, उनके नाथ है शिवा। इसका मतलब क्या बताएं? यू डोंट रिक्वायर एनी क्वालिफिकेशन, यू डोंट हैव टू बी अ बिग millionaire or a billionaire or very handsome or beautiful lady or handsome man or very influential person. No need. Keep your heart simple. तुम्हारा हृदय सिर्फ सिंपल रखो। और हृदय सिंपल का मतलब नो पॉलिटिक्स, कुछ लेना देना नहीं राजनीति से। और आज का कैसा है, छोटा छोटा बच्चा गांव का कहीं ना कुछ तो राजनीति में आएगा ही, वो पॉलिटिक्स में आना ही है उसको। ये पॉलिटिक्स से कोई करियर थोड़ी हो सकता है। जैसे डॉक्टर इंजीनियर करियर है, पॉलिटिक्स लोगों को लगता है ये भी हो सकता है। तो कितने लोग प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बताओ? 140 करोड़ में से कितने प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, कितने चीफ मिनिस्टर बनेंगे? बाकी तो ऐसे सड़ जाएंगे, है ना। इसलिए सिंपल रहो, वो है भोलेनाथ। जहां पर भी भगवान शिव देखते हैं कि सिंपल आदमी है, उसको अपना कृपा दे देते। His another name is निरंजन। निरंजन का मतलब बहुत ही शुद्ध आत्मा है, वेरी वेरी प्योर। दैट इज हिज नेम इज निरंजन। His another name is सोमनाथ। सोमनाथ का मतलब है चंद्र के देवता, चंद्र के भी स्वामी, जिन्होंने चंद्र की रक्षा की थी, वो है सोमनाथ। शिवा सिट्स ऑन टाइगर स्किन। तो टाइगर स्किन को क्या बैठना, क्यों बैठना है? ऐसा नहीं कि तुमने खुद मार के तो नहीं लाएगा, है तो प्रणाम कर जाए। तो पहले लोग टाइगर स्किन पे बैठते थे, खुद भी हंटिंग ही करते थे। अभी तो वैसा परचेस किया हुआ नहीं था वो। पर टाइगर स्किन के ऊपर वही व्यक्ति बैठ सकता है जिन्होंने अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके रखा। महाराज का अर्थ है गोस्वामी, और महाराज का अर्थ है जिन्होंने अपनी इंद्रियों के ऊपर दमन किया है, इंद्रियों को कंट्रोल में किया है, इंद्रियजीत हो गए। वो है इंद्रजीत नहीं, इंद्रियजीत। तो वो है, वो व्यक्ति टाइगर स्किन पे बैठते हैं या डियर स्किन पे बैठते हैं। तो शिवा भी अपने डियर स्किन पर बैठते हैं। तो इस प्रकार से शिवा के 1008 नेम्स है, उनके अलग अलग उसकी मीनिंग है। शिवा इज आशुतोष एंड पर दुख दुखी। शिवा की भक्ति करने के लिए कोई कॉज नहीं लगता है, कोई बेसिक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग के लिए चलो भाई तुम्हारा 12 तो इसका एग्जाम देना है, वो देना है, फिर बाद में ऐसा है ही नहीं, जो भी है आ जाओ। इसलिए कोई भी राक्षस बोलेगा अरे मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो जाता है नारद मुनि के पास। नारद मुनि गाइड है ना, काउंसलर है वो, राक्षसों के भी है, देवताओं के भी है, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग के भी है। हाँ, तो राक्षस जाता बोलता क्या करो, तो शिव जी के पास जाओ, कृष्ण की भक्ति करते करते मर जाएगा तो भी वो कृष्ण प्रसन्न होने वाले नहीं है। ये कृष्ण कैसी पर्सनैलिटी मालूम है क्या? कृष्ण इज नॉट फोर्स्ड। उनको कोई आदेश नहीं दे सकता है कि क्या कृष्ण 50 साल हो गए तुम्हारे 16 माला करते रहे, माला मेरी उंगलियां घिस गई सारी माला करते करते, तुम अभी तक प्रसन्न होकर कुछ रेसिप्रोकेशन नहीं दिख रहा है। और क्या है? स्वराट, सुप्रीमली इंडिपेंडेंट। मैं ऑल राइट्स रिजर्व, कोई हमारे ब्रांच नहीं है, कुछ नहीं है, एक ही है हमारा। वो ऐसी पर्सनैलिटी है, सुप्रीमली ऑटोक्रेट। ये मैं हूँ, वो है, मेरे ऊपर तुम क्वेश्चन नहीं पूछने का, ये क्यों हुआ वह क्यों हुआ, तुम सिर्फ फॉलो करो। शिव जी का कैसा है या बाकी कोई भी देवता का, तो तुमने 4 स्टेप पूरे किए क्या? 1 2 3 4 स्टेप किया, अभी आगे नहीं गया, 4 स्टेप का इसको बेनिफिट दे दो। 40 रुपए हो गए तुम्हारे, 40 रुपए ले लो भाई साहब, तुमने इतनी तपस्या की है। अब हिरण्यकशिपु, ब्रह्मा जी न्यू दैट हिरण्यकशिपु आने से पहले मालूम था कि विष्णु को मारना है उसको। मंदार पर्वत पर जाने के बाद मतलब पहले ही कोई 1 2 पैर के ऊपर खड़ा हो गया, अंगूठे पे खड़ा हो गया,
ब्रह्मा को भी मालूम है, शिवा को भी मालूम है, सारे देवताओं को मालूम है इसकी इंटेंशन क्या है, लेकिन उसने वर्शिप पूरा किया। ब्रह्मा जी बोले क्या चाहिए, बोल बेटा मैं तैयार हूँ देने के लिए। The gods, the demigods are forced to give the benedictions according to your worship. कृष्ण का ऐसा नहीं है। अगर वो हिरण्यकशिपु को जाता था ना, करोड़ों करोड़ों साल भी करता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था जीवन में, बिकॉज ये बाकी देवता ये नियमों में आते हैं। भौतिक दुनिया में हर चीज़ का एक नियम है, और सारे इंक्लूडिंग शिवा वो भी इसके नियम में आते हैं। कृष्ण नहीं है उसमें। इसीलिए तो देखिए वृकासुर नॉट वृत्रासुर, वृकासुर नारद मुनि से पूछे क्या करूं, 8 दिन के अंदर चाहिए आपको, तो जाओ आशुतोष शिवा है। इतना शॉर्टकट वाला व्यक्ति था ये, फास्टेस्ट चाहिए था। ये यज्ञ बनाया, पहले दिन क्या किया, एक पैर काट दिया। जस्ट इमेजिन वर्शिप देखो किस प्रकार की है, एक पैर काट दिया डाल दिया यज्ञ में, आ जाओ शिवा, आए नहीं। दूसरे दिन दूसरा पैर काटा डाल दिया, शिवा आ जाओ, भोलेनाथ आ जाओ, नहीं आए। हाथ काटा, पैर काटा, अलग अलग लिम्स काट के डाल दिया। कैसा व्यक्ति है सोचो। शिव जी भी देख रहे थे, बोले ये कौन सी वर्शिप है भाई, खुद के आम ब्लड और ये वो डाल रहा है सब काट के। शिवा नहीं आ रहे थे, चाकू लिया, अबे हाथ तो बाकी नहीं था, तो थोड़ा गला पता नहीं कैसे काटना, गला काटने वाले था, मरने वाला था। शिव जी आ गए, क्या चाहिए बेटा, सारी दुनिया को नष्ट करना है मुझे। शिव जी बोले मुझे मालूम था दूर का राक्षसी तो भाई क्या मांगेगा दूसरा। सोचो अबे आजकल के लोगों में भी शक्तियां तो बहुत है, कितनी पावर है, वो कंप्यूटर में ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्या बनाएंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स या फिर ऐसी चीजें जो डिस्ट्रक्ट कर सकती है। अभी इंटरनेट पे देखो ना, या टेलीविजन में देखो, कोई भी प्रोग्राम्स आएगा उसमें कुछ तो ऐसा कहानी रहेगा कि वो धर्म के अगेंस्ट रहेगा, लोग और कैसे पाप कर पाएंगे, छोटे लड़के लड़कियां भी कैसे गंदी गंदी चीज़ें ज़्यादा करेंगे, बैड हैबिट्स में कैसे जाएंगे, स्मोकिंग में कैसे जाएंगे, ड्रग्स में कैसे जाएंगे। ऊपर से गवर्नमेंट क्या बनाएगा, अरे हम लोग जो सब बैड हैबिट से लोगों को बचाने के लिए अलग अलग बनाएंगे, प्रोसेस वही करेंगे। सीक्रेट कौन बनाता है, सैंक्शन कौन करता है, लीगल सैंक्शन कौन करता है, ये सब कलयुग का ही है ये। तो शिव जी ने कहा ठीक है क्या चाहिए, जिसके भी सर के ऊपर हाथ रखो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। और शिव जी ने कहा कुछ तो ऐसा मांग भाई, जो मरा हुआ व्यक्ति वो जीवित हो जाए, ऐसा कुछ मांग ले, जीवित व्यक्ति को मार रहा है मुझे। सोचो ऐसा व्यक्ति क्या कृष्ण भक्ति करेगा। इसीलिए जो मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस लोग हैं, कृष्ण की भक्ति करने के लिए कम से कम सत्वगुण चाहिए। तो ये मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस के लिए शिव जी बने। शिव जी ने कहा ठीक है तथास्तु जाओ, वृकासुर वहीं पे। शिव जी ने कहा मैंने बोल दिया तुमको, तथास्तु तो बोल दिया, इससे ज्यादा और क्या करूं, नहीं आपकी सर के ऊपर रखना है। ये कोई सा व्यक्ति है, मैंने मेडिटेशन दिया, मुझे हाँ पार्वती का भोग करना है ना। तो लगा वृकासुर पीछे, शिव जी दौड़ने लगे आगे। ऐसा है शिव जी इतने स्पेशल पर्सनैलिटी है ये। जब कहीं देखते ना कि रामेश्वरम में देखते हैं कि भगवान राम शिव जी की वर्शिप कर रहे हैं, तो इसलिए सब लोग शिव जी का गुणगान करने लगे कि अरे शिव जी आप इतने बड़े, भगवान राम ने आपकी वर्शिप की। तो शिव जी को डाइजेस्ट नहीं हुआ ये, उनको लगा भगवान राम आप मेरे साथ गेम खेल रहे हो। ये शिव जी का अंदर का ये बता रहा हूँ आपको, हार्ट का ये। शिव जी बोलते हैं मेरे साथ गेम खेल रहे हो, मेरा वर्शिप करके मुझे दिखा रहे हो कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ, अब देखो मैं क्या क्या लीला करता हूँ। तो शिव जी ने अभी देखिए इसमें भृगु ऋषि आए और ब्रह्मा शिवा और विष्णु तीनों की परीक्षा लेने लगे कि तीनों में से कौन श्रेष्ठ है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी तो उनको भृगु ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी गुस्से हो गए कि भृगु ने प्रणाम नहीं किया, इसलिए भृगु ब्रह्मा जी नाराज हो गए, कुपित हो गए, क्रोधित हो गए, शिव जी के पास गए और शिव जी को उन्होंने बहुत कहा अरे तू तो भस्म लगाता है, ये है वो है वो है, गंदा है, ऐसा ऐसा ऐसे वर्ड्स बोले। शिव जी ने अपना ट्राइडेंट निकाला और मारने के लिए भृगु के ऊपर पार्वती माता ने रोक दिया। अब इस स्टोरी में हमको क्या सुनते हैं हम कि शिव जी गुस्सा हो गए, शिव जी तीनों गुणों के अंदर आ गए। राइट, शिव जी ने गेम खेला, यहाँ पर आचार्य बोलते हैं
भगवान राम आपने वर्शिप करके मुझे बड़ा बना दिया है, अब ये लीला से सारी दुनिया देखेगी कि मैं भी 3 गुणों के अंदर हूँ और आपको लोग मानेंगे विष्णु सबसे श्रेष्ठ है। ये दोनों के बीच में कंपटीशन है। हमारे बीच में कंपटीशन है कि ये बड़ा है कि वो बड़ा है। अब मूर्ख लोग ये सोचते हैं, उन दोनों के बीच में कंपटीशन है कि मैं प्रभु आपका दास हूँ, मैं आपके गुणगान कैसे बढ़े उसके लिए करते हैं। ये इसीलिए उन्होंने दिखाया कि मैं गुस्सा हो गया हूँ, एंड लेट द होल वर्ल्ड नो दैट आई एम बिलो कृष्ण। भगवान से नीचा हूँ मैं, ऊपर नहीं। इवन और फिर उसके बाद कृष्ण ने कहा मेरी बारी है तुम्हारे गुणगान दिखाने के लिए। तो जैसे समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में जहर आ गया ऊपर में। अब सोचिए कृष्ण के लिए, कृष्ण ने बनाया वो जहर, समुद्र भी उन्होंने बनाया, पृथ्वी भी उन्होंने बनाई, तो क्या वो जहर वो कुछ नहीं कर सकते क्या? कृष्ण ने कहा जाओ शिव जी के पास। हाँ वो बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है, वो जहर का कुछ तो कर सकते हैं। सब देवता गए, शिव जी ने कहा प्रभु आपने यहाँ पे और छक्कर मार दिया तो उन्होंने कहा ठीक है पी लिया, नीलकंठ बनकर फिर से। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में ऐसी लीला है कि साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकते। इतना ही नहीं, जब भगवान कृष्ण बालक बनकर आए तो शिव जी को लगा अब हम इनका दर्शन करना चाहते हैं। आ गए गोकुल में और छोटे से बालक कन्हैया, यशोदा माई ने उनको अपने कमरे में बंद करके कमरे में रखा था कृष्ण को। शिव जी आए, भोलेनाथ। अब कैसे भोलेनाथ बन के आएगा ऐसा नहीं हो सकता, एक साधु का वेश करके आए, थोड़ा सा भस्म विस्म लगा के ऐसा वैसा। तो आए यशोदा माई के सामने और मैया हमें लाला का दर्शन करना है। यशोदा माई बोलती बिल्कुल नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा? वो यशोदा माई बोलती आप लोगों का मेरे काना अभी तो बेचारा 4-5 दिन या 2-3 महीने का है, उसने आप लोगों को क्या बिगाड़ा है? कोई राक्षस पूतना बन के आई, कोई राक्षस अलग अलग रूप के लेके आते हैं। मुझे ये बताओ भाई, ये छोटा सा बालक अभी तो घर में चलना भी नहीं सीखा है, तो तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है इसने? अलग अलग रूप लेके तुम ये राक्षस लोग कैसे क्यों आते हो? तो शिव जी हंसने लगे, ये तो यशोदा माई के वर्ड्स नहीं है, ये तो कृष्ण के वर्ड्स है। वही अगर दर्शन नहीं देना चाहे तो हम क्या कर सकते? तो बाद में कृष्ण को ही दया आ गई कि छोड़ो यार, आप वहां से आए, कैलाश पर्वत से इतना चल के आए, चलो दर्शन दे देते आपको तो ये आपस की इतनी उनकी लीला है। तो शिव जी ये मैं मेन पॉइंट भूल गया। एनीवे इज पतित पावन है, पूरे सारे पतितों का वो उद्धार करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमने शिवलिंग का एक्सप्लेनेशन दिया है। जितने भी शास्त्र है 18 पुराण वगैरह, उसमें जीव गोस्वामी लिखते हैं कि बाकी सारे शास्त्र कलयुग में पढ़ने के लायक है ही नहीं। मैंने बहुत सारे पुराण पढ़ के देखे हैं, उसमें जीव गोस्वामी लिखते हैं उसमें संबंध और अभिधेय और प्रयोजन है ही नहीं, सिर्फ भागवत में है। बाकी सब ऐसा स्टोरी करके घुमा घुमा के वहीं पे आएंगे सब, क्योंकि कलयुग के लोगों को हाईएस्ट भगवान देना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो हाईएस्ट डाइजेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। कंडेंस मिल्क या पूरा प्योर घी कितने लोग डाइजेस्ट कर पाते हैं? अभी नहीं, ऐसा थर्ड क्लास ऑयल खाने वाले लोग हैं, एकदम हाईएस्ट प्योर घी कहाँ डाइजेस्ट करेंगे? इसलिए ये सारे सिर्फ भागवत ही ऐसा प्योर कंडेंस है अभी, इसी के पीछे लोगों। और बाकी जो है जितने अभी हम बाकी पुराण वगैरह है, शिव पुराण है, ये है वो है, लेकिन वो एक इंस्पिरेशन के लिए या बाकी इसके लिए हम लोग ले सकते हैं। अपना कितना टाइम है और एंड हो गया? मैं थोड़ा आज 10 मिनट थोड़ा दे दूँ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्टोरीज है शिवा के, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी तो मैंने आपको सिर्फ फिलॉसफी बताई, थोड़े पास टाइम होता है। एक बार शिव जी
पार्वती बैठे। नारद ने देखा कि कितनी स्पेशल फैमिली है। शिव जी के कैरियर है नंदी, पार्वती की माता की कैरियर क्या है? शेर, गणेश का है चूहा और कार्तिक का है मयूर। लेकिन सारे के सारे शांत बैठे, ना वो मोर देख रहा है चूहे की तरफ, ना शेर देख रहा है बैल की तरफ, और देख भी रहे तो भी खुश है अपने आप में। तो नारद मुनि बताते हैं घर में सारे दुश्मन बैठे हुए हैं और चूहा और मयूर का कभी जमेगा क्या? शेर तो सबको खा जाएगा, बैल से लेकर सबको। लेकिन शिव और पार्वती वो इतने कृष्णा कॉन्शियस है, दोनों के दोनों भगवान के इतने शुद्ध भक्त है, तो छोटे मोटे जो आपस में जो उनके जानवर विनोर है वो भी कोऑपरेट कर लेते हैं। उसी प्रकार से कलियुग में अगर हस्बैंड और वाइफ उनकी अगर भक्ति बड़ी स्ट्रांग है, कृष्ण की भक्ति है, दोनों के दोनों अच्छे माला जप करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, वैष्णव की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, आपकी जो छोटे वाले जीव है ना, बच्चे बोलिए या जानवर बोलिए, उनका सब कृष्ण रक्षण करते हैं। कभी कभी बोलते ना मेरा बेटा ऐसा क्यों बन रहा है, मेरी बेटी ऐसे क्यों बन रही है। अगर हमारी इच्छा अगर स्ट्रांग है, हमारी भक्ति अगर स्ट्रांग है ना, कुछ देर के लिए भले हमारा बेटा थोड़ा सा उठपटांग चीजें करेगा या लड़की थोड़ी ठीक से कोऑपरेट नहीं करेगी, जो भी होगा समय ऐसा आएगा, क्योंकि हमारी चिंता कृष्ण को है। कृष्ण बोलेंगे कि भाई मेरे जो भक्त है पति और पत्नी, इनकी प्यूरिफिकेशन के लिए, इनकी शुद्धिकरण के लिए मैंने थोड़ा घुमाया इनको। बच्चे ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। अल्टीमेटली कृष्ण को ये वो फिक्स करना ही है, वो फैमिली का पूरा अच्छे से बनाना ही है कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण कितने देर तक आपकी परीक्षा करेंगे। तो ये शिव और पार्वती के एग्जाम्पल से है, हम समझ सकते हैं कि अगर हमारे घर में चाहे कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की स्थिति हो, कभी कभी होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं बचपन में तो बहुत अच्छी भक्ति करते थे, लेकिन अभी टीनेज में बोलो या थोड़े जवानी में थोड़े से भटक गए। लेकिन फिर भी आप अपना प्रयास कीजिए, थोड़ा बहुत माला भी, एक हाथ दो माला भी किया, बाकी कुछ भी नहीं किया, एक माला भी किया तो भी उनका कनेक्शन रहेगा। लेकिन फिर भी भगवान ऐसे है, थोड़ा उनके टूर घुमा के लेके आएंगे, थोड़ा भौतिक दुनिया का अनुभव हो जाएगा, थोड़ा ये होगा, और लास्ट में खुद ही थोड़े सोचेंगे अरे मेरे माता पिता जो करते वो सही है या फिर हमारे जो शिक्षक गुरु वगैरह करते हैं वही सही है। कुछ लोगों के लिए वो एक्सपीरियंस की आवश्यकता है, कुछ लोगों को एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, वो सीधा ही आके बैठ जाते हैं आप लोग भागवतम क्लास में, बाकी लोग थोड़ा घूम के आएंगे, चिंता की बात नहीं है। तो प्रभुपाद एक बार चेन्नई में थे, तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने पूछा, स्वामी जी दोनों में क्या डिफरेंस है, शिव और विष्णु? प्रभुपाद जी ने कहा दोनों में अंतर ये है, एक की पूजा होती है, दूसरे की भक्ति होती है। और प्रभुपाद ने इतना क्लियर बताया कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वर्शिपर्स में अंतर है। शिवा के जनरली जो भी शिवा के पास आते हैं, पार्वती के पास आते हैं या बाकी देवताओं के पास जाते हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है भौतिक लाभ। लेकिन भक्ति का अर्थ है उसमें बिजनेस नहीं होता है। नरसिंह देव आए और प्रहलाद को कहे बेटा तुमने इतनी भक्ति की है, मेरी इतनी सेवा की है, मैं बहुत तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो जो मांगना है। खुद ही बोल रहे हैं नरसिंह देव। प्रहलाद बोलते हैं प्रभु मैंने आपकी भक्ति की है, बिजनेस थोड़ी ना किया है आपके साथ, आपके साथ बिजनेस नहीं किया मैंने। लेकिन जनरली देवताओं के इसमें क्या होता है, बिजनेस से ही स्टार्ट होता है ना, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मतलब कोई भी आदमी मैक्सिमम भले वो दुख में भी क्यों ना हो जाता है, मंदिर में क्यों जाता है, ये प्रभु बहुत दुख है, इतने सारे प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, शरीर का प्रॉब्लम है, व्याधि है, ये है, हजारों प्रॉब्लम है, जाता है कि भगवान के सामने। लेकिन भक्ति वाला होता है, इसलिए भक्तों को ये बड़ा लेसन है सीखने के लिए। भक्त कभी जाएगा ना कृष्ण के सामने, वो एक ही प्रश्न पूछेगा भगवान से, हाउ कैन आई सर्व यू, कि प्रभु
मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं क्वालिफाइड हूँ आपकी सेवा करने के लिए, और आपकी सेवा करने के लिए मुझे सिर्फ फिट रखो बस, आप मतलब हाथ पैर चलने चाहिए मेरे, आपकी सेवा मैं कर पाऊँ बस। अब उसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत हो नहीं हो वो आप देख लीजिए, मुझे दूसरा कुछ चाहिए नहीं, मैं सिर्फ आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ये फर्क है पूजा और भक्ति में। उसको विश्वास है कि कृष्ण जो भी मेरे, अगर वो मेरे लिए मृत्यु भी दे दे तो भी वो मेरे लिए अच्छा रहेगा, भला रहेगा। तो कैसा विश्वास! जब सूरज डूब गया और जयद्रथ, थैंक यू, जयद्रथ आ गए सामने और सारे कौरव हंस रहे, अरे देखो जयद्रथ की मृत्यु हुई नहीं है, अभी अर्जुन को मरना है, अभी अर्जुन को फायर में प्रवेश करना है। जब देखा अर्जुन ने सूर्य में डूब गया है, जयद्रथ भी है, कृष्ण की तरफ अर्जुन ने देखा, उन्होंने कहा प्रभु मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ऐसा क्यों हुआ, हम पांडव एक एक मिनट आपकी सेवा के लिए जिए हैं, एक क्षण भी ऐसा नहीं था कि हम अपने लिए जिए हैं, लेकिन आपकी यही इच्छा है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। दूसरा कोई होता तो अरे भगवान कैसा पूरे जीवन भर हमने तुम्हारे लिए ये क्या, तुम्हारे लिए वैसा क्या, और लास्ट में तुमने मुझे इतना धोखा दिया, किस प्रकार का भगवान हो तू, वैसा नहीं, क्या फायदा तुम्हारा भक्ति करके, मेरे जीवन में तो ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो भक्त नहीं है। ठीक है भगवान, मुझे अगर अग्नि में प्रवेश करना है तो करो। अर्जुन ने, कृष्ण ने उससे पहले एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कि देख यार मैंने सुदर्शन चक्र से उनको कवर करके रखा, ऐसा नहीं था। इसके कहते सरेंडर, इसे कहते शरणागति। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये भेद है शिवा वर्शिपर्स और कृष्ण वर्शिपर्स में। और शिव जी को पूछा गया कि आपकी एक्सटेंसी क्या है, तो उन्होंने राधा कृपा कटाक्ष लिखा। आप लोगों ने सुना है राधा कृपा कटाक्ष? प्लीज सुनिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राधा रानी का वर्णन किसी शास्त्र में नहीं है, ये नहीं वो नहीं, राधा रानी का वर्णन तो सिर्फ हमारे गोस्वामी वगैरह इन्होंने लिखा है। शिव जी ने राधा कृपा कटाक्ष लिखा है, हाईएस्ट उन्होंने यहाँ भी लिखा है। और राधा कृपा कटाक्ष से कंपोज किया, राइट लिखा उन्होंने, और सुना किसको रहे पता है? अपनी पत्नी पार्वती। कैसी पर्सनैलिटी है। और अपनी पत्नी को कहते हैं देखो ऐसा है, हिमाद्रिजा कुलुमजा तुम हो पार्वती, और लक्ष्मी माता गोलोक वृंदावन से, फिर ब्रह्मा जी की सरस्वती और इंद्र की सची, और ये सारी जो देवियाँ हैं ना, ये तुम देवियों की जो पास जो भी शक्तियाँ हैं, मिस्टिक पावर्स है, धन है, ये है, वो सारा राधा रानी के नाखून से आ रहा है, नाखून की एज से आ रहा है। कोई कहेगा अपनी पत्नी को ऐसा तुम इतनी सुंदर हो ना, लेकिन वो दूसरी है ना, वो बहुत तुमसे 10 गुना ज़्यादा सुंदर है। एक बार बोल के देखो, पता चलेगा क्या होगा। यहाँ पे पार्वती माता की नम्रता, बल्कि तुम्हारे शिव जी बोल रहे हैं पार्वती तुम्हारे पास जितनी भी सारी शक्तियाँ है ना, राधा रानी के चरण कमल से आ रही है, उनके नाखून से आ रही है। पार्वती माता में सही है, ये है नम्रता इनकी। पार्वती दिखने में माता बड़ी त्रिशूल त्रिशूल दिखेगा, काली माँ दिखेगी, लेकिन वो किसके लिए है? जो राक्षस है, ये बहुत दयालु है। यही तो माता पिता है दुनिया के। लक्ष्मी नारायण बहुत दूर है, राधा और कृष्ण है दुनिया से परे, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये दुनिया के सबसे पास वाले व्यक्ति शिव और पार्वती है। इसलिए उनके पास शिवरात्रि के दिन तो भगवान के ये प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु आप हमें सिर्फ कृष्ण की भक्ति दिए, राम की भक्ति दिया, मेरे लिए जो भी आवश्यक है, कुछ नहीं चाहिए आपसे, जो मेरे जीवन के लिए आवश्यक है वो आप दीजिए। और शिवा जरूर सबको भगवान की कनेक्ट करते हैं। जय भगवान शिव की जय। हरे